I, Tejas Pandey. And I, Rumaisa, feel exhilarated to welcome our chief guest, Admiral R. Hari Kumar, PVSM, AVSM, VSM, ADC, who in fact needs no introduction. He's a serving flag officer in the Indian Navy and the 25th and the current Chief of Naval Staff. I'm absolutely delighted to extend a warm welcome to Mr. Gaurav Sharma, HCS Chief Executive Officer, DRDAK, Karnal. And I feel ecstatic to welcome Honorary Secretary of Dayal Singh College Trust Society, Vice Admiral Satish Soni, PVSM, AVSM, NM, retired. I gladly receive Dr. Rajveer Singulia, General Manager, Dayal Singh College Trust Society, to today's event. I would also like to accord genial welcome to the Board of Trustees, members of School Management Committee, representatives and principals from the esteemed institutions, the headmistresses and teachers from our sister concerns, and all the dignitaries present here, who have contributed significantly to the growth of our educational community. I feel myself privileged to acknowledge the presence of our dedicated parents, whose unwavering support has been instrumental in our journey towards excellence. I extend my heartfelt greetings to my most gracious and revered principal, Ma'am Shalini Narang, with whose prominence the whole school reverberates, and to my most conscientious headmistress, Ma'am Madhu Grover, and all the teachers of Dayal Singh Public Schools. Today, we come together not only to celebrate the achievements of our students, but also to showcase the spirit of unity and learning that defines our institution. So let's enjoy this event and may it be a memorable one for everyone present here. So thank you all from the bottom of my heart for gracing this occasion with your presence. The occasion commences with the lighting of the lamp. May I request our worthy chief guest, Admiral R. Hari Kumar, Vice Admiral Satish Soni, General Manager Dr. Rajveer Singulia, and all the dignitaries sitting in the front row to kindly come forward. Thank you, sir. And achieving success in all our endeavors. Thank you all the respected guests. I now request Ma'am Principal to present our venerated chief guest, Admiral R. Hari Kumar, with the bouquet. Thank you, sir. Vice Admiral Satish Soni to present our chief guest with a token of gratitude.
सर एक्सक्यूज हाथ जोड़ वंदन मेरे सब कर्म करो वंदना निज कर्मों की, करो वंदना निज कर्मों की, जीवन के सब रंग कर्मों की, जीवन के सब रंग कर्मों की, करो वंदना निज कर्मों की, करो वंदना निज कर्मों की।
मुझे आपने उनसे विरासत में पाया है जिन्होंने हमें एक सभ्य समाज का तस्वुर दिखलाया है। मैं गांधी की पुकार, भगत सिंह की ललकार हूँ। जितना हिंदू उतना ही सिख, ईसाई और मुसलमान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं आप सबका संविधान हूँ। हर नागरिक की नागरिकता का मैं प्रथम अधिकार हूँ। इंसाफ का प्रहार हूँ। शासक की लगाम हूँ। हर बेजुबान की जुबान हूँ। हमारी अनेकों भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान है। मैं हमारी विविधता में भारतीयता की पहचान हूँ। मैं आपका संविधान हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता का प्रमाण हूँ। मुझे बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों, इन लोगों ने तो मेरे पीछे अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। और क्या फायदा हुआ उस कुर्बानी का? भगत, वो यारा, कल जब हमारी अपनी आवाज नहीं थी, हमारा अपना कानून नहीं था, तब हम चीखते चिल्लाते थे। और आज जब हमारा अपना उनका संविधान है, तो उसकी इनको कोई कदर नहीं। लेकिन यही तो तुम लोगों का सपना था ना, एक आजाद देश का, जहाँ एक कानून हो हर किसी के लिए, जहाँ इंसानियत का मजहब सबसे ऊपर हो, जहाँ सब आजाद हो शरीर और सोच से। हंसी आती है ऐसी बातों पर। क्या संविधान सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के नाटकों और समारोह के लिए ही बनाया था? आजादी और संविधान तो मिल गए, पर क्या आजादी के असल मायने ये लोग समझे हैं? लगता है ये लोग किसी बात से नाराज हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनसे हम फिर बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी कहानी बता रहा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में मुझे यानी इस देश के 130 करोड़ भारतीयों के संविधान को लिखा गया। लेकिन मेरी कहानी शुरू होती है उससे बहुत पहले। सन 1857 भारत का पहला विद्रोह। अंग्रेजों की जंजीरों में लिपटा भारत, मंगल पांडे जैसों के आक्रोश में उबलता भारत, जब उसने गड़गड़ हुंकार लगाया था, गुलामी की गहरी नींद में जब आजादी के ख्वाब का सैलाब आया था। शुरू हो गई है। यही समय है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। ये विद्रोह है उनके एक तरफे कानून का जो हमारा शोषण करता है। लेकिन मंगल, क्या तुमको नहीं लगता हम दलबाजी कर रहे हैं? यह सब करके क्या मिलेगा हमको? हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम इसको जीना कहते हो तो मरना इससे बेहतर है लाखा। ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। लेकिन हमेशा से ऐसा चलता आया है मंगल, और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। इसे ये लड़ाई छोड़नी हो उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरी ये लड़ाई मेरे आने वाले भारत के नाम है। एक ऐसा भारत जहां हमारा अपना कानून होगा, जहां जात पात का भेद नहीं होगा, जहां खुशियां होंगी, भाईचारा होगा, प्यार होगा।
हम कमजोर हैं या हम निर्बल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम डरते हैं। हम डरते हैं बदलाव से, हम डरते हैं अलगाव से। हम सब कुछ सह लेना चाहते हैं बजाय अपने हक की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ इंतजार करना जानते हैं। हम इंतजार करना चाहते हैं किसी और का जो हमारे हक के लिए आवाज उठाए। मैं इस इंतजार को नकारता हूं। जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा जुल्म होता है, और ब्रिटिश हुकूमत के सारे कानून जुल्म है हम लोगों के लिए। ये कानून नहीं, ब्रिटिश हुकूमत की मनमानी है, खाली हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे मन और मस्तिष्क पर भी। मुझे मौत से अब डर नहीं लगता। मेरी इस कुर्बानी को जाया मत जाने देना। ये एक मशाल होगी जो रोशनी लाएगी आने वाले हिंदुस्तान के लिए, जहां हमारा अपना आईन होगा, जिसमें हमारे पाक सपने आईना देखेंगे। हमारा अपना संविधान जो हमारी परेशानियों का समाधान होगा, एक आजाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने सपनों की आग को बुझने मत देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रूप में। अल्लाह कोई नया एक्ट या कानून आ जाता था, जिसके चलते मासूम लोगों पर फिर मनमानी की जाती थी। और फिर आया एक ऐसा कानून जिसकी परछाई ने मानवता के इतिहास पर काले धब्बे जड़ दिए। रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919।
ये पहली मथे पिले चंद सूरज सदा सखी सही दोस्तों ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਅਟੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ है केड़ा कानून होया भला सरकार किसी को भी जेल में छूट देवे तो भी बिना किसी सबूत दे कादा पर मिलना भी जुर्म कादा बाहर निकलना भी जुर्म कानून है कहेंगे सदा साल लेना भी जुर्म है ऐसी की मर जाओगे सानू है लोग का तोड़े रहने दी कोई लोड़ नहीं ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੋਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ Demand for a home rule, and there cannot be any justification against the brutality of Jallianwala Bagh massacre. They killed our children, they killed our women, our unarmed and innocent people. We trusted British and recruited our soldiers for their war. We gave them our blood, our wealth, our everything. But in return, what did we get? Betrayal. We want our own government. Government of India, for the people of India. And this demand is non-negotiable. मेरे प्यारे भाइयों, जलियांवाला बाग की चीखें अभी तक हमारे कानों में गूंज रही हैं। ये सोचने की बात है कि ब्रिटिश हुकूमत का एक तरफा कानून इस धरती की 30% आबादी को कैसे गुलाम बनाए रख सकता है। हम 35 करोड़ हैं और वो सिर्फ 1.25 लाख। हमें अपने आइन और अपने संविधान की लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन उससे पहले हमें लायक बनना होगा उस आजादी के। हमें नींव रखनी होगी हमारे आने वाले भविष्य की। ये लोग हम पर जुल्म करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, किसी को भी जेल में बंद कर देते हैं और तो और किसी की भी जमीनें हथिया लेते हैं। तो आप ही बताइए, इस पर क्या किया जाना चाहिए? क्या ईंट का जवाब पत्थर ही है? अगर आंख का जवाब खाली आंख ही है तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? जुल्म के बदले जुल्म करना मैं मानवता की कमजोरी समझता हूं। इसलिए मैं अपने कुछ कांग्रेसी साथियों के हिंसावादी अलगाव के सुझाव को नकारता हूं।
हमें दुश्मन के शरीर पर नहीं, उसकी सोच पर हमला करना है और उन्हें इस बात का एहसास कराना है कि वो गलत हैं और हम सही। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आज से, अभी से हम लोग एक पूर्ण असहयोग आंदोलन करेंगे, कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश रूल। इसके दौरान हम उन पर शारीरिक प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि अपने दृढ़ निश्चय और मजबूत मानसिकता से उन्हें झुकने पर मजबूर कर देंगे। हम उनके हर उस कानून को मानने से इनकार कर देंगे जो हमारे खिलाफ है, बेशक उसके लिए हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। हम विदेशी सामान और कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक नींव उखड़ रही है। हम उनके स्कूलों और दफ्तरों में जाना भी बंद कर देंगे। हम आज से देसी अपनाएंगे। मैं आप सभी से वादा करता हूं, अगर ऐसा हुआ तो हमें सिर्फ 1 साल में पूर्ण स्वराज मिल जाएगा। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। गांधी जी ने कहा है कि अगर हमने इन अंग्रेजों के कानून का बहिष्कार किया तो हमें सिर्फ 1 साल में ही आजादी मिल जाएगी। ओए हाँ, अब इन अंग्रेजों के कानून के बदले अब हमारा कानून होगा, अब हमारा संविधान होगा। वक्ते वंदे मातरम, वंदे मातरम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बात 1921 की है। मुझे तो मानो कल की ही लगती है, जब भारतीय संविधान यानी मेरे वजूद का सपना सच ही होने वाला था। पूरा देश संगठित होकर मेरे लिए लड़ रहा था। लगता था अब आजादी मिल ही जाएगी। और फिर हुआ चौरी चौरा, जिसमें विरोध उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ भारतीयों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चारों ओर निराशा छाई हुई थी, मानो बरसों से सूखे में झुलसे हुए गांव में घने बादलों को हवा का झोंका फिर उड़ा कर ले गया हो। पर भारतीयों का जज्बा रुका नहीं, हमारी लड़ाई जारी थी, अलग अलग तरीकों से। एक तरफ कांग्रेस अंग्रेजी सरकार से बातचीत कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे गुट खड़े थे, जिनका मानना था मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, आजादी अंग्रेजों से छीन कर लेनी पड़ेगी। अंग्रेजी हुकूमत को भी अब ये एहसास हो गया था कि भारतीयों की मांगों को ज्यादा दिन दबाया नहीं जा सकेगा। सत श्री अकाल जी। सुनो साथियों, आज सारी छुट्टी के बाद पीछे वाले मैदान में मिलना। आज हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की मीटिंग है। सुखदेव, आज का एजेंडा क्या है? आज से 3 दिन बाद जॉन साइमन भारत आ रहा है। साइमन कमीशन लेकर, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के 7 अफसर हिंदुस्तान में संविधानिक परिवर्तन करेंगे। ये क्या बात हुई भाई? 35 करोड़ हिंदुस्तानियों का संविधान 7 गुरुओं के हवाले कैसे? जबकि हमारे देश में कितनी भाषाएं, धर्म, विचारधाराएं हैं। ये फिर हमारे साथ नाइंसाफी होगी। ये तो दिखावा है। असल में अंग्रेजी सरकार इस बढ़ते आंदोलन को दबाना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि वो उसके लिए अच्छा कानून बना रहे हैं, पर असल में ये फिर से मनमानी होगी। एक भी हिंदुस्तानी को इस पेच में नहीं डालने का मतलब है ये कानून हमारी सरकार के विपरीत ही बनेगा। हम ब्रिटिश हुकूमत की ये मनमानी नहीं चलने देंगे। लाला लाजपत राय जी ने विरोध सभा बुलाई है, इसको हम लोग लीड करेंगे। हमारे साथ हजारों लोग और जुड़ेंगे। दोस्तों, हमें बहुत सारे काम करने हैं। पोस्टर्स, प्लकार्ड्स बनाने हैं, लोगों को जमा करना है। सब छुट्टी के बाद मिलो। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। मैं आज नहीं आ सकता। क्यों? तुझे के नोटंकी मार ले जा। मुझे मजाक पसंद नहीं सुखदेव, मुझे कांग्रेस की रैली में जाना है। अरे तुमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में नहीं सुना क्या? बिल्कुल अच्छी तरह सुना है। आज उसी के लिए कांग्रेस की इंटरनल वोटिंग है। मुझे लगता है कांग्रेस हमें हमारा संविधान और आजादी दोनों दिलवाएगी। इसमें उन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन की भी राय मांगी है।
मोतीलाल नेहरू जी की नेहरू रिपोर्ट पर। हमें कोई आजादी तश्तरी पर सजाकर नहीं देगा, हमें उसके लिए लड़ना होगा बनवारी। हमने पहले भी सोचा था कि हमें आजादी मिल जाएगी, और हुआ क्या? हम सबने अंग्रेजी स्कूलों और दफ्तरों को छोड़ दिया। देश का बूढ़ा बड़ा बच्चा और औरत आंदोलन में जुट गए थे। और ये रिकॉर्ड भी समझौता ही है जिसमें हमें डोमिनेंट स्टेटस तो मिलेगा, लेकिन पूरी आजादी नहीं बनवाली। छोटे बड़े फैसले हमें अंग्रेजी सरकार से पूछकर लेने पड़ेंगे। ओए, बेशक पूरी आजादी नहीं होगी, कम से कम अपनी सरकार तो होगी। और क्या फायदा होगा ऐसी आजादी और ऐसे संविधान का? इसमें हर चीज ऊपर वालों से पूछ कर करनी पड़े। कल को गोरे शासक चले जाएंगे और उनकी जगह भूरे शासक आ जाएंगे, फिर वो भी वही करेंगे। अपने मतलब के लिए हम लोगों को बांटेंगे, अपने फायदे के लिए हमारे कानूनों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आज हम गौरव से आजादी मांग रहे हैं, कल को हमें अपने लोगों से ही अपना हक मांगना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो भगत, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ही लड़ाई लड़नी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस भी इस डोमिनेंट स्टेटस वाली बात को नकार देगी। साइमन Go back! साइमन Go back! साइमन Go back! 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 ये साल 1929-30 का था। पिछले 2 सालों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की काया पलट गई थी। एक तरफ गांधी जी की सूझबूझ और नेतृत्व में भारत के सभी नागरिक किसी विशेष धर्म, जात, भाषा या विचारधारा से परे हटकर एक आंदोलन में संगठित होकर भाग ले रहे थे, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ दी थी। दूसरी ओर भगत सिंह और उनके एचआरए के सभी साथियों को जेल हो गई थी और कुछ फांसी के तख्त पर भी चढ़ गए थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला भी ले लिया था। सॉन्डर्स को मारकर, पार्लियामेंट में बम फेंककर उन्होंने पहली अंग्रेजी सरकार के कानों में ब्रिटेन तक अपनी आवाज पहुंचा दी थी कि वो चुप रहने वाले नहीं है और अपना हक छीन कर लेंगे।
वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान से अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापिस जाना ही होगा। अब हमारा निश्चय टूट है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज ही चाहिए। ये हमारा हक है जो अंग्रेजों ने पिछले 200 सालों से हमसे छीना हुआ है। मैंने लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी, जिसमें हमारे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, सेना के फालतू खर्च पर भारतीय खजाने की लूट बंद करना, नमक और किसानों पर लगाया हुआ भारी टैक्स को रद्द करना भी शामिल था। इसको उन्होंने नकार दिया है। वो सोचते हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वे जो कुछ भी करेंगे हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम उनसे डरते हैं। डरते सिर्फ वो ही हैं जिन्होंने या तो कोई चोरी की हो या फिर वे कमजोर हो। हमने कोई चोरी तो नहीं की है जो हम डरे। तो क्या हम कमजोर हैं? नहीं। 35 करोड़ हिंदुस्तानी कैसे 2 लाख अंग्रेजों से कमजोर हो सकते हैं भला? बेशक उनके पास असला बारूद है, लाठियां और बंदूकें भी हैं हमें डराने के लिए, लेकिन हमारे पास एक सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियार है, वो है सत्याग्रह। हम सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हम कोई बंदूक नहीं उठाएंगे और ना ही किसी को भी हानि पहुंचाएंगे। ब्रिटिश सरकार के सारे कानून भारतीयों का शोषण करते हैं, ये सत्य है। तो आज से हम उनका कोई भी कानून नहीं मानेंगे। इस सत्याग्रह की शुरुआत हम नमक के कानून को तोड़कर करेंगे। नमक और पानी एक इंसान की मूल जरूरतों में से एक है। इस पर अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार जमा रखा है। हम नमक का कानून तोड़कर अपना नमक खुद बनाएंगे और ये ऐलान कर देंगे कि आज से हम उनका कोई भी कानून नहीं मानेंगे। ये मार्च साबरमती आश्रम से डांडी तक होगी। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े।
दिया, पूरा देश करोड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर आया और ब्रिटिश हुकूमत के बनाए कानूनों को मानने से मना कर दिया। 80,000 से भी ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन थक हार कर ब्रिटिश सरकार को हमारी शर्तें माननी पड़ी। यह पहली बार था कि वो भारतीयों से आमने सामने बैठकर बात करने के लिए तैयार थी। भगत, सुना है भारतीय सत्याग्रह के आगे ब्रिटिश सरकार ने घुटने टेक दिए और वो हमारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो। ये तो सिर्फ शुरुआत है राजगुरु। आज हमारी शर्तें मानी है, कुछ दिनों बाद हम आजाद होंगे, हमारा अपना संविधान भी होगा, इन अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही होगा। ओ भगत यार, कैसा होगा वो हमारा भारत जो आजाद होगा, जिसका अपना संविधान होगा। कल तो हमारी फांसी है सुखदेव। हम तो देख नहीं पाएंगे उस मंजर को, लेकिन इन लोगों को वो हसीन मुल्क जरूर मैसर होगा जहाँ सबका संविधान होगा, जिसकी नजर में ये सब लोग बराबर होंगे, जहाँ सब सुरक्षित होंगे, जहाँ हर भाषा और मजहब का सम्मान होगा, जहाँ खुशियाँ शादमानी होगी, जहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ ये सरहदें नहीं होगी, सिर्फ हमारा खंड भारत होगा। यारो, कल तो हम विदा लेंगे, पर फिर लौटेंगे अगले जन्म में यहीं अपनी ख्वाबों की सरजमीन हिंदुस्तान पर। तब तक जरा संजो कर रखना और संभाल कर इसकी हिफाजत करना। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। हिंदुस्तानी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। बढ़ते भारतीय आंदोलन और ब्रिटेन के दूसरे देशों से आपसी युद्ध के बाद आखिरकार अंग्रेजी सरकार एक भारतीय संविधान बनाकर भारतीयों को सरकार सौंपने के लिए तैयार हो। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 इस संविधान को बनाने की पहली कोशिश थी, जो कि हमारी उम्मीदों पर खरा तो नहीं उतरा, पर उसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दूरियां और बढ़ा दी। भारत जैसे विविधता वाले देश, जिसमें अनेकों प्रांत, धर्म, जातियां और भाषाएं हैं, उसके किसी और कानून को अपनाने से काम नहीं चल सकता था। हमें जरूरत थी एक ऐसे संविधान की जो इन सब को साथ लेकर चले, प्यार से और सम्मान से। Our demand is loud and clear. There cannot be a single constitution for everybody. We have put forward our demand in the Lahore Resolution of March 23rd, 1940, that we Muslims of India should have a separate state
with a constitution that safeguards rights of all Muslims. 15 अगस्त 1947 हमें आजादी तो मिली पर एक बहुत बड़ी कीमत पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी मंजिल कहीं ना कहीं, कि मिल जाएगी मंजिल कहीं ना कहीं, कि मिल जाएगी मंजिल कहीं ना कहीं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of nation, long suppressed, finds utterance. नियति ने अपना फैसला सुना दिया है। जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो आज रात आ गई है। कल सूर्य उदय के साथ एक नए भारत का उदय होगा, जहां हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें अपने इतिहास को याद रखना होगा और उससे सीखना होगा। अब हम उस परम पिता परमेश्वर को शुक्रिया करेंगे और यह प्रण लेंगे कि हमारा जीना सिर्फ मानवता के हित में होगा। हम सब इस देश के लिए एक होंगे और हमारे लिए सबसे पहले ये देश होगा। एक आजाद मुल्क का सबसे पहला काम होगा उसके बाशिंदों को उनका संविधान देना, एक ऐसा आईन देना जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित हो और आशावादी हो। आइए इस तिरंगे को लहराकर दुनिया को यह संदेश दे कि इस पृथ्वी की सबसे पुरानी संस्कृति एक बार फिर उड़ान भरने जा रही है। इस तिरंगे का भगवा रंग हमारे त्याग का प्रतीक होगा। इसके बीच यह सफेद रंग हमारी शांति का पैगाम देगा और इसका यह हरा रंग हमारी एकता और विश्वास को मजबूत रखेगा। इसके बीच यह अशोक चक्र मानव धर्म को दर्शाएगा जो निरंतर प्रगति का प्रतीक होगा। भारत में हर धर्म, भाषा और सभ्यता का सम्मान होगा। वंदे मातरम।
राजेंद्र प्रसाद इस आजाद भारत की प्रथम संसद और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ एकत्रित होने का एक मकसद है, इस देश के लोगों को उनसे छीने हुए हक देना, उन्हें उनका संविधान देना। और ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमारा ये संविधान इस देश के सबसे गरीब, कमजोर व निर्बल व्यक्तियों का हित और सरकारों का भी ख्याल रखेगा। इसी मकसद के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन करती है, जिसमें अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योग्य संचालन में होगा। किसी भी संविधान का सबसे पहला काम होना चाहिए उसके देश के बाशिंदों को उनके मौलिक अधिकार दिलाना, उनके फंडामेंटल राइट्स। मैं दुर्गाबाई जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम अमेरिकी संविधान पर नजर डालें तो हमें पता लगता है कि उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों को पाने के लिए 200 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। You all may one by one give your suggestions. आप सभी एक एक करके अपने सुझाव दीजिए। आप सभी के हिसाब से क्या क्या एक नागरिक के मौलिक अधिकार होने चाहिए? मेरे तर्क से आजादी एक इंसान का सबसे जरूरी मौलिक अधिकार है। जिस आजादी के लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वह फिर कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर ना रह जाए। इस देश में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा मानना है हर व्यक्ति इस कमेटी में इस बात से राजी होगा। मेरा सुझाव होगा कि संविधान हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार दे। बिल्कुल, हमें इस बात पर महत्व देना चाहिए कि हमारे समाज में लंबे समय से पुरुषों और महिलाओं के बीच में भेदभाव किए गए हैं। बिल्कुल। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिलाते हैं, चाहे वह नौकरी, पढ़ाई या अन्य कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो। बेशक इसमें महिलाओं के साथ सभी जाति, धर्मों और प्रांतों के व्यक्तियों की समानता को भी जोड़ना चाहूंगा। मौलिक अधिकारों में मजहब की आजादी भी होनी चाहिए। भारत जैसा देश जहाँ अनेक धर्म, अनेक भाषाएं हैं, वह हर व्यक्ति को शांतिपूर्वक अपने मजहब की आजादी भी होनी चाहिए। सही दुल्हन की बात बिल्कुल ठीक है। साल 11 महीने और 18 दिनों का सफर यहाँ से तय किया है। इस धरती के सबसे बड़े संविधान की सूरत हाल को अमल होने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी सूझबूझ, मेहनत और लगन से इस काम को अंजाम दिया। यहाँ एक ऐसे देश के संविधान की बात हो रही थी जो कि सैकड़ों प्रांतों और 565 प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। यहाँ जरूरी हो गया था कि इन सभी बटे हुए राज्यों की संस्कृतियों को एकजुट करके यूनियन ऑफ इंडिया बनाने का अपनी राजनीतिक सूझबूझ, मेहनत और लगन से भारत के लौह पुरुष और प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक अखंड भारत को एक किया। हम भारत के नागरिक ये शपथ लेते हैं कि भारत के नागरिकों को आजादी, सम्मान, समानता, न्याय और बेहतर जिंदगी का हक अदा करते हैं। और हम शपथ लेते हैं कि भारत को एक आजाद, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा देते हैं। आज की ताज़ा खबर। संविधान पर आधारित कुंजी सिर्फ 70 रुपए, करंट अफेयर्स 80 रुपए। कुंजी ले लो कुंजी, संविधान पर आधारित कुंजी ले लो कुंजी, संविधान पर आधारित। तुम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज कर लिया क्या? अभी 20 मिनट है परीक्षा में। हर साल 5 नंबर का एक ही सवाल आता है, मैंने छोड़ दिया। हिस्ट्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही कहते हो। अगर पूछा भी तो हर साल की तरह आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में पूछ सकते हैं। मैंने उल्टा मार लिया है। कुंजी ले लो कुंजी, संविधान पर आधारित कुंजी। मैम, आपने संविधान की कुंजी सिर्फ 70 रुपए की है। अरे तुम्हारी उम्र क्या है? उम्र पता नहीं मैम। 14 साल तक वो शिक्षा
ये किताबें क्यों बेचती हो? आज की ताज़ा खबर, मेडिकल सीट घोटाला, रिश्वतखोरों ने सभी सीटें खरीदी। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आर्टिकल 40 राइट टू इक्वलिटी, लेकिन इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आज की ताजा खबर, बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए लोगों पर लाठीचार्ज, 15 घायल, 2 की मौत। आर्टिकल 19 से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इन्हां लोगों को की फर्क पैंदा है? आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, रेल मंत्रालय को करोड़ों का घाटा, यात्रियों की लापरवाही और सरकारी सामान की चोरी। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। अपने देश की संपत्ति की खुद चोरी। अब क्या हुआ? कहाँ गया वो जोश? अब तो आप सबको आपका हक, आपका संविधान मिल गया। क्या आप लोगों ने अपने संविधान की कद्र की? क्या आप लोगों ने कभी अपने संविधान को समझने की कोशिश की? मैडम, सर, क्या आप जानते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कर्तव्य की भी बात करी जाए। आज आप सभी के पास आपके संवैधानिक हक और अधिकार है, लेकिन आप सब उससे अनजान, और इसी लापरवाही की वजह से आप सभी का शोषण होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और मेरे सभी साथी आज आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहते हैं। बेशक आप लोग हमारे नाम का इस्तेमाल ना करें, हमारे नाम पर सड़कों और विद्यालयों का नाम मत रखें, मगर कृपया इस संविधान की महान विरासत का ख्याल रखें, इसे सहेज कर रखें और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। जिस सभ्य समाज का तस्वीर हमने किया था वो तभी साकार होगा। May I request our chief guest to ignite us all with his words of wisdom. Vice Admiral Satish Soni, one of my esteemed mentors throughout my naval career. Dr. Rajbir Guha, General Manager, Dayal Singh Public Trust. Members of the school board, Mrs. Shalini Naran, Principal, Dayal Singh Public School, Karnal. Principals of the other Dayal Singh Public Schools, Mr. Gaurav Sharma, Chief Executive Officer of Jilla Parishad, BRBAK. Members of the staff and faculty, students, proud parents, esteemed veterans who are present here, ladies and gentlemen, good afternoon and namaste to all of you. It's indeed a matter of great pride and pleasure for me to be here amongst you today. At the outset, heartiest congratulations to all the award winners, and I'm sure that this recognition would motivate you to perform even better in your future endeavors. And my compliments also to the principal, the staff and students for presenting such a magnificent cultural program. I was just telling Mr. Ankur, who came on the dais just now, that I had been to New York last week and I saw a Broadway play, Aladdin. I think your show today will give a run for the money for that show. I am convinced that you will continue to enlighten and empower not only the students of the school, but also enrich and enable the society at large. So as we celebrate the accolades and achievements of the school,
we must also understand that life is not just about success alone. Rather, it is about the eternal journey of learning and imbibing the right lessons to embrace change, welcome challenges, and transform them into opportunities, the foundations of which are laid at home. Therefore, the parents are and will remain our teachers eternally. So my felicitations to the proud parents sitting here for their stellar role in molding and motivating these young minds. I would urge you to continue your efforts towards imbibing noble values and good character at home that will shape this generation into responsible citizens of Viksit Bharat. Read anything and everything that you find interesting, that you're passionate about. It will expand your horizon and it will allow you to think differently. In fact, if you look at the word book as an acronym, what does it stand for? Box of Organized Knowledge. Okay, book, B-O-O-K. It's a box of organized knowledge. To my mind, books can act as great mentors for free or very little cost. You can go back to Bhagavad Gita or Plato, Socrates, to the latest, people who are either not there anymore or living today, and it is at hardly any expense. They are great mentors. You can, read and interact in many ways as mentors. So as Mark Twain has put it rightly, a person who won't read has no advantage over a person who can't read. So all of you are lucky to be here in schools like this, where you have been educated well. Please pursue reading as a habit, and it will always stand you in good stead. So some of the books I would recommend for you to read are, in fact, the first book one should read, in my opinion, is a book called How to Read a Book. It is written by Mortimer J. Adler, and it is there on the internet for free. It was written sometime in the 1950s. I myself came across it much later in life, but I would advise all of you to first read this book, and that will help you read more books. There's a book called Self-Help by Samuel Smiles. It's again freely available on the internet, a very good book with lots of examples, lots of anecdotes about virtues, about various aspects that will help build your character and help you through life. The third, I would say, is a thin book called The Character of a Gentleman by Francis Lieber. It is again freely available on the internet. And two recent books. One is India, that is Bharat by J. Sai Deepak, and Brave Hearts of Bharat by Vikram Sampath. So these 5 books I would recommend that you could read, and it will give you a better perspective. It will add to your personality. The sixth, as compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't, he pays it. So it's very, very very relevant, and we need to ensure that our children, students, understand this aspect. The last point I want to tell is about time management. It is sacred as well as a scarce resource. While all of us have the same amount of time, we must remember that it is finite, but the possibilities it provides are endless. So if you ask any successful leader about this one resource that they need to manage most effectively, all of them will give the same answer: time. So when you manage your time well, you create space not only for your studies, but also for pursuing your passions, your hobbies, and spending quality time with your dear ones. See some of you donning the Navy's white uniform in the future. So dear children, I have full faith in your potential, and I am confident that you will make us proud with your achievements. So I extend my best wishes to all the students for their future endeavors. May you continue to shine as bright beacons of hope and inspiration, lighting up the world with your brilliance. So before concluding, I would like to express my gratitude to the principal and the management of DSPS for this opportunity. I actually take every opportunity I get to try and speak to the youth, to the children, because it inspires me as well, seeing the energy and the enthusiasm that you have. And I'm also looking forward to interacting with all of you during lunch. May I request you all to join me in a round of applause to congratulate all the award winners and the participants of this cultural show.